नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य में यह उनका पहला दौरा है। वे पहले वडोदरा पहुंचे, जहां रोड शो किया। फिर दाहोद में पीएम ने 9000 हॉर्स पावर इंजन का लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम सुबह करीब 10 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसे सिंदूर सम्मान यात्रा का नाम दिया गया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, પહેલા તો મારે અહીંના બધા લોકોનો આભાર માનવો છે કે મને વચ્ચેથી બધાને મળીને લાવવાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો। અનેક જૂના જૂના લોકોના દર્શન કરવાનો મને મોકો મળ્યો। અનેક ચીર પરિચિત ચહેરા, અનેક જૂની જૂની વાતો અને મારો દાહોદ જોડે નાતો રાજકારણમાં આવ્યા પછી નથી થયો। લગભગ 70 વર્ષ થયા હશે। બે ત્રણ પેઢીઓને સાથે નિકટતાથી કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે। અને આજે હું પરેલ ગયો, આ વખતે તો કદાચ હું 30 વર્ષ પછી પરેલ બાજુ ગયો હોઈશ। આખું પરેલ બદલાઈ ગયું છે। પહેલા હું અહીં આવું એટલે સૂર્યાસ્તનો જ્યારે ટાઈમ થાય તો મારો પ્રયાસ હોય કે સાયકલ પર પરેલ જવું। અને વરસાદ થયો હોય અને લીલોતરી થઈ હોય, નાની નાની ટેકરીઓ, ત્યાંથી એક રસ્તો જતો હોય, એવી સાંજ મને આનંદદાયક લાગતી। અને પછી પરેલમાં, રેલવેમાં બધા જે ભાઈઓ કામ કરતા એમના ત્યાં કોઈના ત્યાં હાજના રોટલા ખાઈને પાછો આવવું। આટલો મારો નિકટનો નાતો। અને આજે પરેલની આન બાન શાન જોઈને સાથીઓ, અહીંની દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે આપણે લગાતાર કામ કરતા રહ્યા છે, અનેક પગલા લીધા છે। અને મારે ગર્વ સાથે કહેવું છે કે દાહોદ વિશે મેં જે સપના જોયા છે ને, એ આજે સાકાર થવાનું મને અને આંખો સામે જોવાનું સૌભાગ્ય મળી રહ્યું છે। અને હું દાવા સાથે કહું છું, હિન્દુસ્તાનમાં આદિવાસી બહુલ જિલ્લો કેવી રીતે વિકાસ પામે એનું કોઈ મોડેલ જોવું હોય તો અમારા દાહોદ આવે। આદિવાસી જિલ્લામાં સ્માર્ટ સિટી બની વાત આવે એ જ લોકોને જરા નવતર લાગે। દેશમાં લગભગ 70 રૂટ ઉપર આજે વંદે ભારત ટ્રેન ચાલી રહી છે। અને આજે આપણા દાહોદથી પણ અમદાવાદથી વેળાવળ સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં આપણી આ વંદે ભારત ટ્રેન શરૂ થઈ છે। અને પહેલા તો આપણા દાહોદના ભાઈઓને ઉજ્જૈન જવાનું મન થાય, પાસે પડે ઉજ્જૈન। હવે આપને સોમનાથ માટેના દરવાજા ખુલી ગયા છે। साथियों, भारत में आज
આટલી આધુનિક ગાડીઓ ચાલી રહી છે અને એનું એક મોટું કારણ છે હવે નવી ટેકનોલોજી આ દેશના જવાનિયાઓ આપણી યુવા પેઢી ભારતમાં તૈયાર કરી રહી છે. કોચ ભારતમાં બને, લોકોમોટિવ ભારતમાં બને, આ બધું પહેલા આપણે વિદેશોમાંથી લાવવું પડતું હતું. આજે પૈસા પણ આપણા, પરસેવો પણ આપણો અને પરિણામ પણ આપણું. આજે ભારત રેલવે સાથે જોડાયેલી અનેક ચીજો બનાવીને દુનિયાનો એક મોટું એક્સપોર્ટર બની રહ્યું છે. આપને જાણી ના હતા, ઓસ્ટ્રેલિયા તમે જાઓ ને તો ત્યાં જે મેટ્રો ચાલે ને એમાં કોચ આપણા ગુજરાતમાં બનેલા છે. ઇંગ્લેન્ડ જાઓ, સાઉદી અરબ જાઓ, ફ્રાન્સ જાઓ, અનેક દેશોમાં ગાડીઓ જે ચાલી રહી છે આધુનિક, એના જે કોચ છે એ ભારતમાં બનીને જઈ રહ્યા છે. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के 2 स्कूलों के भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया। इनमें दादरी ब्लॉक के प्यावली ताजपुर में 30 करोड़ से जिले का पहला मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और बेसरक ब्लॉक के पाली में 1 करोड़ 24 लाख रुपए से जनपद का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल शामिल है। दोनों विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षाएं संचालित होंगी। साथ ही जिले परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जूते, मोजे और ड्रेस का शुल्क भी अभिभावकों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। लगभग 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद अपने कुछ अभिनव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य को सजाने और संवारने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है। सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंदी की कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो,
उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो एक अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों, या एक नए परिसरीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। हमने कहा रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने की एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साफ संदेश है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित और संरक्षण प्राप्त आतंकवाद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब सिंदूर को उजाड़ा गया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। आज दुनिया को यह समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के हर आतंकवाद में पाकिस्तान शामिल है, चाहे वह 9/11 हो, 26/11 हो या यूरोप में आतंकवादी हो। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था। आतंकवाद एक कैंसर है और सभी को इसके खिलाफ एक स्वर में बोलना चाहिए। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद जो सरहद के पार से होता है, जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है, तो उसका कॉस्ट भी होगा। और यही हमने किया कि अगर सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया। आज दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी हैं डेजिग्नेटेड, वो पाकिस्तान में है। और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो आपका यूरोप के आतंकवादी। ओसामा बिन लादेन कहां थे, मिले, बोलिए। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, तो ये हम चर्चा करेंगे कि आज आतंकवाद पर दुनिया को एक साथ बोलना चाहिए। ये एक नासूर है, कैंसर है। और भारत एक बड़ा देश है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है,
हमारा दुनिया में बहुत, वी आर द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तीसरे के रास्ते पर है। लेकिन आतंकवाद के नासूर से भारत समझौता नहीं करेगा। और हम इस बात को विशेष रूप से बोलेंगे कि हम लोग 4 बार जंग लड़ चुके हैं ना, 48, 65, 71, कारगिल का 99, दर्जनों हमले हुए संसद पर, मुंबई में कोई कार्रवाई हुई क्या? तो ये जो बार बार कही जाती है, तो इसीलिए सिंपल है, दिस फार एंड नो फर्दर, ये है ऑपरेशन सिंदूर। तो शांति और सद्भाव और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, ये तीनों विषय बताने के लिए हम लोग आए हैं। आज तो हम लोग जरा मिलेंगे अभी थिंक टैंक के लोगों से, फिर भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, फिर मीडिया के लोगों से मिलेंगे। कल हम लोग संसद में जो भारतीय इंडिया कॉकस के लोग हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, उनसे मिलेंगे। तो कल काफी व्यवस्था है और हर जगह हम लोग यही विचार रखेंगे। और सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है और हम लोग 1.4 बिलियन इंडियन के सद्भाव को लेकर के आए। एक स्वर, एक भाषा, शांति, सद्भाव, इन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विचार हम रखेंगे और हमें उम्मीद है कि भारत के पक्ष को दुनिया एप्रिशिएट करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाहोद में एक आधुनिक इंजन कारखाने का उद्घाटन किया गया है। इसमें 9000 हाउस पावर के इंजन बनेंगे और इसका डिजाइन भी एक मॉडर्न डिजाइन है। 9000 हाउस पावर से पावर अच्छा मिलता है, उससे गाड़ी को खींचने की क्षमता भी बढ़ती है। दाहोद में इंजन बनाने का इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने 2022 में फैसला लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको बनना चाहिए। इसके बाद में 2023 में काम चालू हुआ और आज इसकी फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। अभी 5 लोको बन चुके हैं और 3 साल में एक्सपोर्ट का लोको भी तैयार होगा। दाहोद में एक आधुनिक इंजन कारखाने का उद्घाटन किया। इसमें 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स यानी इंजन बनेंगे और ये लोकोमोटिव का डिज़ाइन भी एक बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। इसमें 200 के आसपास सेंसर होते हैं लोको के अंदर, जिससे कि लोको की हेल्थ कंप्लीट ऑनलाइन चेक होती है और 1.5 लाख किलोमीटर तक लोको का कोई फेलियर नहीं हो, इस डिज़ाइन के ये बने। वर्ल्ड के आज की तारीख में सबसे मॉडर्न इंजन्स में से है। 9000 हॉर्स पावर से पावर एक अच्छा मिलता है, उससे गाड़ी को खींचने की क्षमता भी बढ़ती है। और दाहोद में इतिहास रहा है लोकोमोटिव बनाने का। स्टीम का जब लोको का समय था तब वहाँ पर बड़ी अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन होती थी। आज भी एक स्टीम इंजन वहाँ पे है। तो जब स्टीम से डीजल और डीजल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुई इंडस्ट्री, तब दाहोद कहीं पीछे रह गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में ये निर्णय लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको बनना चाहिए दाहोद में, और उसके बाद में ये फैसला लिया। 2023 में काम चालू हुआ और अभी इसका फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ और अभी 5 लोको ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर। शुरुआत में 10 दिन में 1 लोको बनेगा और प्रोडक्शन स्टेबलाइज होने के बाद में 2 दिन में 1 लोको यहाँ से निकलेगा। 3 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट का लोको भी तैयार होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम के उद्घाटन पर कहा कि हमारी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली आधुनिक होती जा रही है। हमारे कुछ शहर हैं जहां हमारी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बहुत बेहतर बन चुकी है। ऐसा भी समय था जब रेडियो पर मौसम का हाल सुनाया जाता था और लोग उस पर व्यंग करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मुंबई जैसे शहर में आम नागरिक अपने मोबाइल पर ही मौसम का हाल देख लेता है। यही हमारा मापदंड है और उसी पर हम पूरा उत्तर कर रहे हैं। 2047 के भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। अब हमारा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता जा रहा है। कहीं कहीं जहां हमें अभी, चूंकि वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इट,
हमारे कुछ एक शहर हैं जहां हमारा मॉनसून फोरकास्ट का सिस्टम बहुत ही उम्दा बन चुका है, जैसे मुंबई में, चेन्नई में। दिल्ली में अभी हमारा थोड़ा सा चूंकि वो प्रोसेस जारी है, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था होगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी भी कहा कि हमारी जो परख है, हमारा जो लिटमस टेस्ट है, वो है कि नागरिक को किस हद तक हमारे ऊपर विश्वास है। क्यों हमने वो भी ज़माना देखा कि रेडियो में जब मौसम का हाल बोला जाता था तो लोग उसका व्यंग करते थे, उसका मजाक करते थे, वो कहते थे अगर ये कह रहे हैं कि बारिश होगी तो मान लीजिए कि धूप होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि मुंबई जैसे शहर में बरसात के दिनों में छतरी ले जाने से पहले आम नागरिक अपनी मोबाइल पर ऐप पर देखता है कि कितने घंटे बारिश रहेगी, कब रुकेगी, और अगर उसकी गृहिणी लाती है छतरी तो बड़े भरोसे के साथ कहता है कि रुक जाओ, 10 मिनट के बाद जाएंगे, तब तक बारिश रुक जाएगी। तो ये हमारी परख है, यही हमारा मापदंड है, और उसी पर हम पूरा उतर करके सन 2047 के भारत को निर्माण करने में अपना योगदान निभाएंगे। हरियाणा मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और निरंतर विकास की ओर भी अग्रसर है। पूरे देश का मान विश्व पटल पर बैठाने का काम पीएम मोदी ने किया है और हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यह और भी आगे जाएगा। और जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी का सपना है, वह निरंतर कहते हैं कि जल्द ही भारत तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से हमारे बड़े देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। आज बहुत ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से निरंतर देश तरक्की पे है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश का मान विश्व पटल पे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जहां आपने अर्थव्यवस्था की बात की, बिल्कुल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तेज गति से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, आज चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय के अंदर ये और भी आगे जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, लगातार वो कहते भी हैं कि जल्दी ही भारत जो है वो तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़े देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने सभी डीएम और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। हमारा मानना है कि जनता का सबसे पहला संपर्क एसडीएम डीएम कार्यालय से होता है, जहां वे अपनी समस्याओं के लिए पहुंचते हैं। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर समस्या का समाधान हो और हर डीएम एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से हर एसडीएम डीएम कार्यालय में एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जहां लोग अपनी कोई भी समस्या डाल सकते हैं और उसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ऑफिस की ओर से एक सुझाव एवं शिकायत पेटिका हर एसडीएम ऑफिस, हर डीएम ऑफिस पे लगाई जाएगी, जहां बिना नाम के भी कोई व्यक्ति, उसको कोई समस्या है, किसी प्रकार के करप्शन का उसको आभास है, तो उसको किसी ने तकलीफ दी है, किसी अधिकारी ने मिसबिहेव किया या जो भी दिक्कत उसको समझ में आती है, वो पर्ची बना करके उसमें डाल सकता है और तुरंत प्रभाव में वो संज्ञान लिया जाएगा। उस शिकायत पेटिका की चाबी भी सीएम कार्यालय से ऑपरेट होगी। महीने में एक बार जा करके हम वो सारी शिकायतें लेकर के आएंगे, उनको पढ़ेंगे और उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक अच्छी जन सुनवाई, सीधा जनता के साथ संपर्क हो पाएगा। तो नए चेयरमैन भी अभी सरकार की ओर से अपॉइंटमेंट हुए हैं और एक अच्छा माहौल डीएम एसडीएम लेवल पे होना चाहिए। पिछली सरकारों के समय में जिस तरह की बुरी स्थिति हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में है, वो बहुत ही भयानक है, जहां ना तो कर्मचारी हैं, ना सफाई कर्मचारी है, ना पियोन है। शिकायत मतलब किसी भी प्रकार की पावर्स ऐसा लगता है कि डीएम्स के पास है नहीं, वो काम करने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया गया। परंतु अब हम बेहतर तरीके से जनता की शिकायतों की सुनवाई हो, सभी ऑफिसेज काम करें, उसको अच्छा माहौल देंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।